Sri Dhanvantari Namaha. Welcome to Indian Institute of Ayurveda and Rasa Shastra. So, starting with the new year, we are starting our session from Dr. Kirti Jain sir. So, Indian Institute of Ayurveda has been started in year 2018 and is being conducting a lot of courses regarding Kriya Kalpas, basic Rasa Shastra drugs like identification of Maharasa Vargas, Sadharana Rasa, Uparasa Vargas and all, and clinical aspects like use of Parpate Kalpas, Potali Kalpas, etc. in its courses. And with these courses, we have also been conducting many of the free sessions which are not only confined to Rasa Shastra but the clinical aspects. So today, in the new year of 2024, we would be starting our sessions by Dr. Kirti Jain sir. So it is my privilege to introduce sir. Sir has completed his Ayurvedic study from Government Ayurveda College Jaipur in the year 1972, and he has been working in the government sector for 28 years. Sir is well experienced in Nadi Pariksha and has a perfect diagnosis. Sir has stabilized his pharmacy in 2004 and is expert in formulating herbal compounds. He has made absolute effective formulations for chronic conditions like bronchial asthma, psoriasis, varicose vein, osteophytic degenerations, etc. Currently, Sir is working on treating cancer conditions. We from the team of Indian Institute of Ayurveda and Rasa Shastra welcome you, sir. मंगलाचरण हो गया? हाँ सर. हाँ जी सर. अच्छा. Let we start. Yes. We are ready? Yes, sir. Okay. Today's topic is अस्थि संधियों में होने वाली विकृतियां. Clinical experience in osteoneurosis diseases. Right? You are hearing me well? Yes, sir. Yes, it's very clear. Yes, it's okay. While we will discuss clinical experience in joints disease, here I want to clear one thing, the definition of arthritis. Arthritis is the inflammation of joints, but it is not the infection. We can put only some diseases of joints pain in arthritis group. Every type of joint pain is not arthritis. Here it should be clear, right? Again, we will discuss the pathology of joints. If I will use Hindi also, it will be better to understand my words. I will speak in Hindi and English both. Joints में होने वाले पैथोलॉजीज उन पर हम चर्चा करते हैं. सबसे बड़ा जो जॉइंट्स पेन का रीजन है वो है degenerative disorders. Nowadays, it is the greatest pathology in joints pain, degenerative disorders. Beside to that, depositions also is a big one cause which cause spondylosis. Spondylotic diseases is also a very big group. Third one is infection. Infection means infection in synovial membrane, infection in some type of bone also, just like osteomyelitis, etc. That is also infection. Then lytic problem, Khayat, which causes thinness in the bone. क्षय जिसको अपन कहेंगे. Next one is damages. Damages because of some medicines, damages because of some other infections like cancer, etc. Here it is essential to
clear the word damages with sporosis. Sporosis is also damage, but it is the lack of vitamin D, calcium. It is not the body metabolic disorder. It is the disorder of vitamins. The other cause is tendular disorders, stretch in tendons and looseness of the tendons. Both can give joint pain. Third one, last but one, senile disorders. Senile disorder is also very weak group for causing joint pain. Some other problems are deficiency of vitamins, or you can say ischemic diseases of joints, which causes necrosis in the joints. And last one is the traumatic lesions. These are the pathologies which can cause pain in joints. In these pathologies, nervine disorders are also inclusive. Now, we will discuss the principal diseases where the joint pain are occurred. Rheumatism, gout, spondylitis, osteophytic degenerations, synovitis, localized inflammation, Coast-to-Sheath. I couldn't find any English term for Coast-to-Sheath. So I name it localized inflammation. Senile arthritis, osteomyelitis, stretched tendons, loose tendons and heel ache. एडी में होने वाला दर्द, इसको हम एक एक चीज को अब लेते हैं. रूमेटिज्म, गाउट, स्पॉन्डिलाइसिस, ओस्टियोफाइटिक डिजेनरेशंस, यह चार ऐसे बीमारी हैं जिनके अंदर हमारे को डिफ्रेंशिएशन करना बहुत जरूरी है. अगर हमने इसको डायग्नोस नहीं किया, रूमेटिज्म है या गाउट है या स्पॉन्डिलाइटिक या ओस्टियोफाइटिक डिजेनरेशन, इन चारों को अगर हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे या हमारा ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा. सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं डिफरेंस बिटवीन रूमेटिज्म एंड गाउट. Gout, as we know, Vatrak. In Ayurveda, it is a Vatrak. In allopathy, it is known by gout. And rheumatism. Rheumatism is a very big problem. Gout is also a big problem nowadays. And it is really very hard to treat these both problems. 2 साल के बच्चे को रूमेटिज्म मिलता है. 2 साल के बच्चे को रूमेटिज्म मिला, इसका मतलब यह है कि उसको आदि बल प्रवृत्त रूमेटिक डिसऑर्डर है, यानी कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर. 60 साल के व्यक्ति को रूमेटिज्म मिला और 75 साल के व्यक्ति को भी रूमेटिज्म मिला. सेम गाउट. गाउट में भी वही प्रॉब्लम्स आती हैं. ऑफ कोर्स मैंने अभी तक 10 साल से नीचे कभी किसी को गाउट नहीं देखा. 10 साल भी मैं ज्यादा बता रहा हूं आपको, 15 साल 17 साल से नीचे गाउट नहीं मिला. लेकिन 15 16 साल 17 साल की उम्र में आकर के गाउट के पेशेंट्स मिलते हैं और ये गाउट लेडीज में ज्यादा होता है. रूमेटिज्म, रूमेटिक आर्थराइटिस जिसको हम कहेंगे, या आमवात, अपने यहाँ इसको आमवात कहते हैं और गाउट को हम वातरक्त कहते हैं. अब इन दोनों के अंदर हमें डिफरेंस करना है.
देखो, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि गाउट जो शुरू होता है वो स्मॉलर जॉइंट से होता है, और इसकी शुरुआत पेशेंट को पता नहीं लग पाती कि उसको शुरू कब हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत अंगूठे से होती है। थंब मतलब पैर का अंगूठा, वहां से शुरू होता है। पेशेंट को पता नहीं रहता 1 साल पहले हुआ था या 6 महीने पहले हुआ था, पता नहीं लगता है। लेकिन जब वो आपके पास में आएगा तो आपको वो, जब आप उससे ये क्लियर करेंगे कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम बड़े जोड़ से शुरू हुई या छोटे जोड़ों से शुरू हुई, तो अगर गाउट है तो छोटे जोड़ों से शुरू हुई, और अगर रोमेटिक है तो बड़े जोड़ों से शुरू हुई। लार्जर जॉइंट से अगर कोई बीमारी शुरू हुई है तो वो रोमेटिज्म हो सकती है, और छोटे जोड़ों से हुई है तो वो गाउट हो सकती है। यह अपना पहला डिफरेंस आया रोमेटिज्म और गाउट का। दूसरा डिफरेंस है स्टिफनेस। स्टिफनेस दोनों में होती है, गाउट में भी स्टिफनेस आती है, लेकिन उसकी स्टिफनेस हार्डनेस होती है। वो स्टिफनेस टेंडुलर स्टिफनेस नहीं है, वो हार्डनिंग ऑफ द बेंडिंग इन जॉइंट है। और रोमेटिक के अंदर जो स्टिफनेस आती है वो हार्डनिंग ऑफ टेंडन्स, यानी कि उस व्यक्ति को मूवमेंट करने में शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन जब मूवमेंट शुरू हो जाता है तो वो इजीली उसको कर लेता है, इजीली मूव कर लेता है। तो वो जो टाइप का पैथोलॉजी है वो रूमेटिक में मिलेगा। और जहां मूवमेंट करते से दर्द बढ़ता है वो गाउट में मिलेगा। तो हमारे तीन बड़े मेजर डिफरेंस हो गए, लार्जर जॉइंट, स्मॉलर जॉइंट्स, स्टार्ट विथ थंब नंबर, और आपका हार्डनेस एंड स्टिफनेस। एक बड़ा डिफरेंस और है कि जब आप गाउट के पेशेंट को देखेंगे तो उसका, यानी पाम को आप गौर करके देखिएगा। पाम में जो छोटे जॉइंट्स हैं वहां आपको कहीं ना कहीं और एक छोटा सा उभार, टॉफी जिसको अपन कहते हैं, जो यूरिक एसिड के डिपोजिशन से बन जाती है, वह मिलेगी। और दूसरी चीज एबनॉर्मल बेंड, आपको अंगुलियों के अंदर एबनॉर्मल बेंड मिलेगा, जो सीधा नहीं होता। बेंड हो गया वो परमानेंट हो गया, वो गाउट में होता है। जबकि रूमेटिस्क में ऐसा कोई डिसऑर्डर नहीं आता। यह दो, मतलब जो हमने आपको डिफरेंस बताए हैं गाउट और रूमेटिज्म में, यह क्लासिफिकेशन के लिए पर्याप्त है। इनको अगर अपन सिंसियरली वॉच करेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि गाउट के पेशेंट को रात में, शुरुआत की रात में दर्द ज्यादा होता है, और रूमेटिज्म के पेशेंट को सुबह के समय दर्द ज्यादा होता है। यह दोषों का और कारण से है। यह दो डिफरेंस हमें अगर हमने किए तो दोनों का डायग्नोस हो जाएगा, गाउट है या रूमेटिक है। इसके अंदर गाउट के अंदर अगर हम पैथोलॉजिकल टेस्ट पे जाएंगे तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलेगा, और रोमेटिज्म के टेस्ट पे जाएंगे तो आरएच फैक्टर बढ़ा हुआ मिलेगा, ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन जब हम पेशेंट्स को देखते हैं तो वहाँ ये दोनों चीजें कई बार गलत निकलती हैं। गाउट का पेशेंट है और उसको यूरिक एसिड नहीं बढ़ा हुआ है, रूमेटिक का पेशेंट है और उसको आरएच फैक्टर बढ़ा हुआ नहीं है। ऐसी स्थितियां बहुत पैदा आती हैं। उस स्थिति के अंदर हमें इसके टेस्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे करके सिम्टम्स पे ही ध्यान देना चाहिए। मैं इनके ट्रीटमेंट में बात पे आऊंगा, पहले एक बार हम इनके डिफरेंसेस को पूरी तरह से समझ लें। अब ये हुआ आपका रोमेटिक डिसऑर्डर और गाउट का डिफरेंस। अब हम आते हैं स्पॉन्डिलोसिस के ऊपर, क्योंकि स्पॉन्डिलोसिस के अंदर भी स्टिफनेस है, स्पॉन्डिलोसिस के अंदर पेन भी है। लेकिन इसका रीजन क्या है? इसमें स्पॉन्डिलोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर दो तरह के रीजन सामने आते हैं। एक तो आता है डिपोजिशन ऑफ कैटाबोलिक
एलिमेंट्स, और दूसरा आता है बल्गिंग ऑफ कार्टिलेज, यानी छोटी छोटी जो कार्टिलेज हैं वो फूल जाती हैं, इन्फ्लेमेशन उनमें आ जाता है, और या वहां पर कैटाबोलिक जो आपके लास्ट जो एलिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं। तो इसके अंदर क्रीपिंग साउंड होना जरूरी होता है। अब मान लीजिएगा कि स्पॉन्डिलोटिक डिसऑर्डर वर्टिब्रा में है तो वहां क्रीपिंग साउंड का पता नहीं लगेगा। अगर घुटने में है तो सबसे पहले पता लग जाएगा, अगर मैंडिबुलर जॉइंट में है तो वहां पता नहीं लगेगा। अब जो इनकी नेचुरल वर्किंग है वो धीरे धीरे हार्ड होती जाएगी, पेन बढ़ता चला जाएगा डिपोजिशंस की वजह से। क्रीपिंग साउंड एंड न्यूरोलॉजिकल पेन, यह इसकी खास पहचान है। अब वर्टिब्रा के अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे अपन फाइंड करेंगे? जैसे अपना ये होता है, इसको अपन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, और आयुर्वेद में इसको विश्वाची कहते हैं। विश्वाची इज द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। इसके अंदर गर्दन की जो सर्वाइकल जो अपने वर्टिब्रा हैं 1 2 3 4 5, खास करके 1 से 5 के बीच में होता है, 6 6 7 में नहीं होता, और लंबर में, और 2 3 4 S1 में होता है। इसके अंदर इन वर्टिब्रास के बीच की जो स्पेस है जहां से नर्व फाइबर्स बाहर निकलते हैं, वह स्पेस कम हो जाती है। उसके कारण डिपोजिशन और बल्किंग, मैंने हड्डी का फूलना और या डिपोजिशन हो जाना, ये दोनों होता है। तो उसमें पेन बहुत होता है, नर्वाइन पेन होता है, और पेन रेफरिंग होता है, आगे बढ़ता है वो पेन, और लास्ट में जाकर के वहां नमनेस आ जाती है। तो तीन चीज इसके अंदर खास करके हो गई। नंबर 1, मूवमेंट इसका इसका रेट होता है। नंबर 2, नर्वाइन पेन होता है, जहां से शुरू हुआ वहां पता नहीं लगता, जहां आगे रेफर हो रहा है वहां जाकर के पता लगता है। और तीसरा, एंड पॉइंट पर नमनेस आती है। यह स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस के अंदर हम मिलेंगे। इसमें दोनों तरह की पैथोलॉजी नजर आती है। इसी तरह से ऑस्टियोफाइटिक डिजेनरेशन, जिसके अंदर खास करके कार्टिलेज और उनकी ग्रोथ होती है, और वर्टिब्रा में भी होती है, नी जॉइंट में भी होती है, आपका जो एल्बो है वहां भी मिलेगी, और रिस्ट जॉइंट के अंदर ये एक अलग तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है जिसको अपन कार्पस टनल सिंड्रोम कहते हैं। इट इज आल्सो ए स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस, ऑस्टियोफाइटिक डिजेनरेशन। Osteophytic degeneration is the largeness, big size of bone and deposition, दोनों दोनों उसमें ये कारण बनते हैं, प्रेशर डालते हैं नर्व के ऊपर, प्रेशर डालने के लिए दोनों कारण बनते हैं। तो इसमें लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। ये हमें इस चीज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एमआरआई से करवा सकते हैं, और कुछ सिम्टम्स भी हैं, तो सिम्टम्स को हम क्लियर करते हैं। ऑस्टियोफाइटिक डिजेनरेशन के अंदर क्रिपिंग साउंड होती है। जैसे मान लो वर्टिब्रा के अंदर ऑस्टियोफाइटिक डिजेनरेशन आया और थोरेसिक में आ रहा है, या सर्विकल में आया, या आपका लंबर में आया, तो जब वो व्यक्ति बेंड करता है, सर्वाइकल मूवमेंट करता है, तो वहां उसको चक्कर आएंगे, वर्टिगो होएगा। जब वो लंबर में मूवमेंट करेगा तो उसको पेन बढ़ेगा, और पेन पैरों में जाएगा, पैरों में जाकर के और लास्ट पॉइंट पे नमनेस आ जाएगी। इसी तरीके से अगर डोर्सल एरिया को मूव करेगा तो वहां आवाज आएगी, उसको क्रिपिंग साउंड सुनाई देगी। ये खास करके वर्टिब्रा में ज्यादा प्रॉब्लम देता है। जैसे अपन लंबर पोर्शन में जो डिपोजिशन, ये आपका कंप्रेशन बढ़ता है तो उसको ग्रंथिरसी कहते हैं, साइटिका जिसको अपन कहते हैं, और उधर ऊपर उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या आपका विश्वाची कहते हैं। अब यहाँ एक थोड़ा सा बीच में मैं एक नया टॉपिक ले रहा हूँ, इस विश्वाची और अब्बाहुक, इसमें भी हमें डिफरेंस करना जरूरी है।
दोनों शोल्डर की डिजीज हैं, दोनों में गर्दन और अपना शोल्डर में पेन होता है। लेकिन अब बाहु यानी फ्रोजन शोल्डर, और विश्वाची यानी आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इन दोनों का डिफरेंस हमें समझना जरूरी है। एक वो जो मेजर डिफरेंस है कि उस व्यक्ति का अगर हमने हाथ ऊपर किया, हाथ ऊपर करवाने पर अगर उसको दर्द हो रहा है, यानी पूरी तरह से उसका हाथ ऊपर नहीं जा रहा या पीछे नहीं मुड़ रहा, तो वो फ्रोजन शोल्डर है। और गर्दन घुमाने से अगर उसको दर्द बढ़ रहा है या चक्कर आ रहे हैं, तो वह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। लंबर कंप्रेशन में ऐसा डिफरेंस नहीं मिलता। लंबर कंप्रेशन में ज्यादातर डिपोजिशन, ये आपका ऑस्टियोफाइटिक डिजेनरेशन ही मिलता है, वहाँ डिपोजिशन कम मिलता है, बहुत कम होता है। बाकी मोस्टली ऑस्टियोफाइटिक डिजेनरेशन ही होता है। और उससे जो होने वाली प्रमुख बीमारी, उसको हम साइटिका या गदरस्ती कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं साइनोवाइटिस के ऊपर। साइनोवाइटिस से इन्फेक्शन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ नी जॉइंट। मेजर प्रॉब्लम उसमें यही आती है। इसके अंदर व्यक्ति चलने की स्थिति में नहीं होता, बिल्कुल जरा भी चलेगा तो पेन हो जाएगा, उसको फीवर भी रह सकता है, घुटना उसका कुछ इन्फ्लेम्ड मिलेगा, और टेंडरनेस उसको मिलेगी। इसमें जब अपन टेस्ट पे जाएंगे तो टीएलसी बढ़ा हुआ आएगा, और मेजर उसको देखने से पता लग जाता है कि इसका घुटना मतलब इन्फ्लेम्ड है और मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, तो वो साइनोवाइटिस इन्फेक्शन है ये। इसके बाद में लोकलाइज इन्फ्लेमेशन, जैसा मैंने कहा था कि क्रोस्टुक शीट्स, इसको हम इंग्लिश में क्या कहें ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। लेकिन क्रोस्टुक शीट्स, इसमें दो तरह के पेशेंट मिलते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको नी जॉइंट में फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, अलग से एक लंप जैसा बन जाता है घुटने के ऊपर। और एक ऐसे मिलते हैं जिनको घुटने के नीचे की तरफ आइदर लेटरल, मतलब राइट साइड लेटरल या लेफ्ट साइड लेटरल, उसमें और एक इन्फ्लेमेशन मिलता है, और टेंडर पेन होता है, वो सीवियर पेन होता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये आपका लोकलाइज इन्फ्लेमेटिव। सेनाइल आर्थराइटिस वृद्धावस्था में होता है, और इसके अंदर जो अपने साइनोवियल फ्लूइड है उसकी कमी हो जाती है, उसकी वजह से ये दर्द पड़ता है। एक अपना जो मैंने बीच में थोड़ा सा उसको लिया था, ओस्टियोमाइलाइटिस, यह इन्फेक्शन ऑफ द बोन। इसमें ज्यादातर ये अपने फीमर, अपनी जो बोन है उसमें होगा, या टीबिया फिबुला में होगा, या ह्यूमरस में होगा, या रेडियो अल्ना में होगा। इन चार पांच मतलब मेजर जो है उसी के अंदर ये मिलता है। इसके अंदर बोन के अंदर और इन्फेक्शन होकर के साइनस बन जाता है, बहुत सीवियर पेन होता है, ठीक नहीं हो पाता। इसका ट्रीटमेंट में अभी आएंगे अपन। और इसमें एक्सरे में पता नहीं चलता, एक्सरे के अंदर बिल्कुल ऐसा स्मूथ एक्सरे आता है कि अंदर कुछ है ही नहीं है, लेकिन उसको और अंदर इन्फेक्शन है, मतलब साइनस बना हुआ है। अब इसमें कई बार क्या होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर, वह साइनस का मुंह जो है वो बोन के स्किन के ऊपर आ जाता है। बोन जहां से स्किन बोन पे अटैच्ड है, जैसे खास करके अपने टीबिया फिबुला के अंदर देखते हैं, वहाँ स्किन पे अटैच्ड है बोन, तो वहां पर स्किन पे उसका मुंह बन जाता है, उसका पता लगता है, उससे ये कंफर्म हो जाता है कि इसको ओस्टियोमाइलाइटिस है। बच्चों में भी होता है, बच्चों में दूसरे रीजन से होता है, लेकिन है वो इन्फेक्शन। और इसके बाद में जो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है टेंडन से रिलेटेड, स्टिफ टेंडन्स, यानी टेंडन खिंचे हुए हैं, हार्ड हो गए हैं, या लूज हो गए हैं, है ना। तो दोनों दोनों के सिम्टम्स अलग आएंगे। स्टिफ टेंडन्स में मतलब बैंडिंग प्रॉब्लम आएगी, और लूजनेस में लचक खाना जिसको कहते हैं, चलते चलते आदमी गिर जाता है, लचक खाता है। तो और एक अपना जो लास्ट है वो है हील एक, एड़ी का दर्द। एड़ी का दर्द, उसको दो तरह की बीमारी इसमें मिलती हैं। एक तो जिसको अपन कदर कहते हैं,
और एक गाउट से रिलेटेड होता है। जो नीचे एड़ी का जो दर्द है, उसमें दो तरह के दर्द मिलते हैं। जो बिल्कुल नीचे की तरफ दर्द है, मतलब एड़ी के सेंटर में दर्द है नीचे, और छोटे पॉइंट पे दर्द होता है, चलने से बढ़ता है, वो कदर है। और जो ऊपर के हिस्से में, मतलब पीछे जो जॉइंट होता है, सॉरी, पीछे का जो एरिया होता है एडी के ऊपर का, वहां जो दर्द होता है उसको अपने को डिफरेंशिएट करना चाहिए कि वो दर्द एक वास्तव में कदर है या गाउट की वजह से। गाउट की वजह से जो दर्द होता है वो एडी के पीछे की तरफ ऊपर होता है। इसको थोड़ा अपन को देखना चाहिए। इसके अलावा जो नर्वस अटैचमेंट है, नर्वस अटैचमेंट अपना स्पॉन्डिलोसिस चेंजेस में मिलेगा, बल्किंग में मिलेगा, स्टिच टेंडन में मिलेगा, और मेनिस्कस ऑफ टीयर। ये एक मेनिस्कस ऑफ टीयर जो है, ये ओस्टियोफाइटिक डिजेनरेशन के अंदर जब चलते चलते दोनों, जो ऊपर से फीमर का लोअर हेड और टिबिया फिबुला का अपर हेड, इनके बीच का जो मेनिस्कस है, जिसको गद्दी सामान्य रूप में अपन कहते हैं कि गद्दी छिल गई या गद्दी फट गई, उसका टीयर है वो फट जाता है। उसमें ट्रॉमे से, ट्रोमेटिक भी हो सकता है और डिजेनरेशन की वजह से भी हो सकता है। ये पैथोलॉजी इसमें बनती है। अब अपन इनके ट्रीटमेंट में आते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैं आपको फीडबैक के लिए भी देना है। तो ज्यादा अपन डिटेल में जाएंगे तो फिर अपने पास टाइम नहीं रहेगा। अब अपन ट्रीटमेंट में आते हैं। रूमेटिज्म के लिए आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट्स आते हैं, उसके अंदर खास करके, जैसा अभी आपने, आप में से बहुत लोगों ने डॉक्टर गोपी कृष्ण जी को वहाँ आयुर्वेद कुंभ में सुना होगा, ताम्र भस्म का उपयोग आमवात के लिए। मैं बहुत समय से इसका उपयोग करता आया हूँ। ताम्र भस्म का प्रयोग मैंने जिस भी गूगल में ताम्र का प्रयोग किया है, तो ऐसे योग लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक समस्या ये भी आती है कि ताम्र का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। ताम्र का विष जो है वो बहुत शीघ्रता से और बड़ा घातक होता है। तो ताम्र का जितना कम प्रयोग करेंगे उतना अच्छा है। तो इसके लिए फिर हमने हर्बल बेस्ड फार्मूलेशन पे विचार किया। हर्बल बेस्ड फार्मूलेशन के अंदर गूगल, शल्य की, दशमूल और अपना निर्गुंडी, गूगल, शल्य की, दशमूल, निर्गुंडी, इन चार चीजों का प्रॉपर तरीके से अगर हम यूज करेंगे तो इसमें अमवात में फायदा मिलेगा। इनके योग अपन शास्त्र में अध्ययन करें, और जैसे योगराज गूगल भी इसमें काम करेगा, योगराज गूगल का भी असर आता है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं आता। योगराज गूगल का अगर हम जरा अच्छा एक असर लेना चाहते हैं, तो उसके साथ में कुछ बहुत कम मात्रा के अंदर समीर पनक का उपयोग करना चाहिए। बहुत कम मात्रा में, 15 से 30 मिलीग्राम में पर डोज में समीर पनक का उपयोग करेंगे तो अमवात का हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। बच्चों को अगर है तो फिर हर्बल पे ही रहना चाहिए, जो शुरुआत में मैंने बताया, गुगुल, शल्य की, अपना निर्गुंडी और दशमूल, इसका प्रयोग करना चाहिए। गाउट में खास करके गिलोय का प्रयोग है, गूगल और गिलोय। अमृता गूगल इसकी सबसे अच्छी दवा है। और एक ऑयल आता है बला गुरुत्यादि तेल। यह अमृता गूगल के साथ बला गुरुत्यादि तेल का अगर हम प्रयोग करेंगे तो गाउट में बहुत अच्छा, मतलब परिणाम आता है, बड़ा जल्दी परिणाम आता है। और दर्द की अगर समस्या है तो इसमें माजून सुरंजान का प्रयोग करना चाहिए। माजून सुरंजान इसके अंदर दर्द के हिसाब से बहुत अच्छी इफेक्टिव है गाउट के अंदर। अब सुरंजान के अभी दूसरे डेरिवेटिव्स भी आए हैं, कालीहारी से भी, मतलब सुरंजान का जो मतलब निकाला है,
जो उसका एलिमेंट है वो इसमें भी निकाला है। तो उसके भी प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट के अंदर, लेकिन सुरक्षित जो है वो मार्जिन सरंजाम है। अमृता गोकुल, बड़ा गुड़ इत्यादि तेल और मार्जिन सरंजाम। स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस के लिए मेरा अनुभव आया है, मैंने इस पे बहुत अध्ययन किया है। बहुत लंबा अध्ययन करने के बाद में, क्योंकि ये बीमारी ठीक नहीं हुई, मैं एलोपैथिक में तो जैसे कमर में मतलब वर्टिब्रा में भी कई हैं तो वो सीधा सीधा कहते हैं भाई ऑपरेशन कराना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। घुटने में है तो घुटने के लिए भी वो कहते हैं कि भाई इम्प्लांट कराना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। इसमें शिलाजीत का प्रयोग बहुत लाभदायक है। और शिलाजीत का प्रयोग जो है, शिला जत्वादी वटी टावर अपने वैद्यनाथ की आती है, ऊंझा की आती है, दोनों बनाते हैं और भी लोग बनाते होंगे। ये मूलतः मधुमेह के लिए है, प्रमेह रोग के लिए है। लेकिन शिलाजीत और नीम दोनों के साथ का प्रयोग जो है वो इसमें ओस्टियोफाइटिक डिजेनरेशन या स्पॉन्डिलोलिटिक चेंजेस दोनों के अंदर प्रभावी है। शिलाजत्वादी का जब अपन फार्मूला देखेंगे तो इसके अंदर शिलाजीत के साथ साथ त्रिभंग भस्मी भी है और नीम के स्वरस की भावना इसमें है। तो नीम जो है वो डिपोजिशंस को हटाने में बहुत इफेक्टिव है। नीम पे कभी चर्चा होगी तो बताएंगे। नीम बॉडी के अंदर कहीं भी डिपोजिशन है वो उसको हटाता है। तो नीम के साथ जब शिलाजीत का प्रयोग किया तो इसके परिणाम बहुत अच्छे मिले। और शिलाजत्वादी वटी में इसकी मात्रा कम से कम 3 ग्राम प्रतिदिन है। 3 ग्राम प्रतिदिन अगर हमने शिलाजत्वादी वटी दी तो उसको ओस्टियोफाइटिक डिजेनरेशन में भी रिलीफ मिलेगा और स्पॉन्डिलोलिटिक चेंजेस में भी रिलीफ मिलेगा। इसके साथ में लोकल ट्रीटमेंट भी दिया जाना चाहिए। लोकल ट्रीटमेंट के अंदर ऑयल वगैरह यूं तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन या तो पत्र पिंड श्वेत से लाभ मिलता है। पत्र पिंड श्वेत इसके अंदर अच्छा इफेक्टिव है, घुटने पे भी लगा सकते हैं और अपने कमर पे भी कहीं भी लगा सकते हैं, उससे इसमें अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन वो संभव नहीं हो पाता, कई बार दिक्कत आती है, कौन करेगा कहाँ करेगा, ये समस्या आती है। तो उसके लिए हमारा जो अनुभव आया है, मेरा जो अनुभव आया है वो तो ये है कि आमा हल्दी, आंबी हल्दी जिसको अपन कहते हैं, और काला जीरी और प्याज और कुचला, इन चारों चीजों का पेस्ट बना करके उससे तेल सिद्ध कर लें और तेल को मतलब उसमें अपने हल्के हाथ से लगाएं और उसके बाद में जो उसका पेस्ट है उस पेस्ट का बंधन कर दें। उससे माने इसमें दोनों ओस्टियोफाइटिक डिजेनरेशन में भी और आपका स्पॉन्डिलोलिटिक चेंजेस के अंदर दोनों में उससे अच्छा लाभ मिलता है। और मैंने मेरा अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। अब तक 1,000 से ऊपर मरीज इसके इस बीमारी के ठीक किए होंगे, जो कि बहुत दूर दूर से भी आते हैं और काफी अच्छा ट्रीटमेंट उन लोगों को मिलता है। क्योंकि इसका बहुत आप जो भी सुन रहे हैं उनको भी बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि ये कौन सी दवा आ गई, ये ऐसी कौन सी मतलब उसमें कहाँ से निकल के आ गई। कहीं इसका शास्त्रों में प्रयोग नहीं है, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है। और शिलाजत्वादी वटिका ओस्टियोफाइटिक डिजेनरेशन के अंदर घुटने में है तो वहां भी और वर्टिब्रा में है तो वहां भी, दोनों जगह काम करता है, अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इसके। लेकिन डोज इसकी 3 ग्राम पर डे है। लोकलाइज इन्फ्लेशन के अपना जो साइनोवाइटिस है, साइनोवाइटिस के अंदर गूगल ही देना है। अब इसमें अब गूगल कौन सा लेना ये तो उसकी प्रकृति के ऊपर है, पर आमतौर पे योगराज गुरुकुल स्वर्ण के साथ में दें। तो जो अपने इसका झंडू फार्मा का आता है, ओरो योग भी आता है, एक और नाम रुमेलिया प्लस या ऐसे कुछ नाम से आता है, ये दोनों इसमें इफेक्टिव है। लेकिन इसके अंदर लोकल ट्रीटमेंट जो है वो एनाल्गेसिक पंचगुण तेल का करना चाहिए। पंचगुण तेल जो है इसमें बहुत जरूरी है लोकल यूज के लिए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है वो पंचगुण तेल से ही जाएगा। लोकलाइज इन्फ्लेमेशन में इसी तरीके से जो जैसा अपन क्रोस्टोफिट्स की बात कर रहे थे,
उसके अंदर खाने की दवा से कुछ नहीं होता। दर्द जितनी जितनी देर तक आपने एनाल्गेसिक कर दिया तो उसका जितना असर आया उतना ही रहेगा, उसके बाद फिर वापस उसको वही। इसमें लोकल ट्रीटमेंट ही काम करता है, और लोकल ट्रीटमेंट इसमें पंचगुण तेल का ही सबसे अच्छा होता है। सेनाइल आर्थराइटिस जो वृद्धा मतलब जिसको अपन सामान्य रूप से संधिवाती कहते हैं और वृद्धावस्था में ज्यादा मिलता है, इसमें नारायण तेल का पान भी कराना चाहिए और नारायण तेल का और अभ्यंग भी कराना चाहिए। अभ्यंग जरूरी है, मतलब क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड जो है उसकी कमी हुई है, तो नारायण तेल या महानारायण तेल जैसा मिल जाए, मैं तो नारायण तेल को ज्यादा अच्छा मानता हूँ, उसका पान भी कराएं और उसको ही स्थानिक प्रयोग करें। ओस्टियोमाइलाइटिस ये बड़ा गंभीर विषय है, बच्चों में ज्यादा होता है, और खास करके जैसा मैंने बताया था कि अ, ये जो अपने स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं उसमें ज्यादा होता है। स्टेरॉइड्स के यूज करने के बाद में ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। या जो कहते हैं अपन अस्थि भंगुरता, अस्थि भंगुरता भी एक विकृति है, इसमें बच्चे खास करके ज्यादा होते हैं, जरा से गिरे और हड्डी टूट गई। वो विकृति भी डैमेज ऑफ बोन कह सकते हैं या उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस भी कह सकते हैं। दोनों स्थिति के अंदर हमें लाक्षादि गुकुल का प्रयोग करना चाहिए। लाक्षा का प्रयोग साथ में चाहिए, लाक्षा और गुकुल। तो इसमें लाक्षादि गुकुल का प्रयोग जो है बहुत लाभदायक है। अकेली लाक्षादि गुकुल से पूरी मात्रा में लंबे समय तक देंगे तो इसमें लाभ मिलता है। अब ये दो तीन तरह की प्रॉब्लम्स को कवर करता है। जैसे एक मैंने बताया ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में भी लाक्षादि गुकुल करेगा। और आपका ये डैमेज जो ड्रग्स की वजह से जो बॉडी मतलब बोन डैमेज होती है, वीक हो जाती है, भंगुरता बढ़ जाती है, उसमें भी लाक्षादि गुकुल। और ऑस्टियोमाइलाइटिस जिसके अंदर साइनस बन जाता है अंदर, उसके अंदर भी ये तीनों ही अवस्थाओं के अंदर और अपना ये लाक्षादि गुकुल का प्रयोग अच्छा मतलब पक्का वो है, परफेक्ट है। अब आता है आपका टेंडुलर डिसऑर्डर्स। टेंडुलर डिसऑर्डर्स के अंदर अगर हार्डनेस है यानी बेंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें क्षीर वाला तेल का पान करवाना चाहिए। क्षीर वाला तेल का ही पान करवाएं और क्षीर वाला तेल को ही लोकल यूज करें, यानी लोकल भी उसी का अभ्यंग करें। अभ्यंग होना चाहिए, मर्दन नहीं होना चाहिए। इन सब के अंदर अभ्यंग की जरूरत है, मर्दन की जरूरत नहीं है, है ना। उससे लाभ मिलता है। क्षीर वाला तेल अकेला टेंडुलर डिसऑर्डर्स के अंदर पर्याप्त है। जिन महिलाओं में खास करके ज्यादा होता है, घुटने नहीं मुड़ पाते और या कमर नहीं मुड़ पाती, या मुड़ गई तो सीधी नहीं हो पाती, तो उस स्थिति के अंदर क्षीर वाला तेल 40 ml पर डे कम से कम चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा। या फिर हम बस्ती दें, उसकी बस्ती देंगे तो और जल्दी परिणाम आएगा उसका। क्षीर वाला तेल की बस्ती देंगे तो ज्यादा अच्छे परिणाम आएंगे, और उसी का पान करेंगे। इसी तरीके से टेंडुलर डिसऑर्डर में एक और आता है कि यानी हार्डनेस ही कहेंगे अपन उसको, लेकिन उस हार्डनेस में पेन ज्यादा होता है। पेन माना दर्द ज्यादा क्यों हुआ, वात की वजह से, वायु की वजह से दर्द ज्यादा होता है, तो उसमें क्षीर वाला तेल की जगह और प्रसारणी तेल का प्रयोग करना चाहिए। वो पान भी उसी का कराएं और अपना अभ्यंग भी उसी से कराएं, प्रसारणी तेल। अब ये मेरा स्वभाव है कि मैं दवा एक या दो ही देता हूँ, उससे ज्यादा नहीं देता। निदान पहले पूरा उसका कंफर्म करके फिर उसके बाद में दवा देते हैं, तो एक दवा दो दवा से ही पूरा फायदा मिलता है। तो अब ये प्रकृति अपन देख लें, क्षीर वाला तेल और प्रसारणी तेल, इन दोनों के अंतर यह है कि स्थूल प्रकृति है, स्थूल शरीर है और कफ प्रकृति है तो प्रसारणी तेल का प्रयोग करें। और पित्त प्रकृति है और अपना कृशकाय है तो उसमें क्षीर वाला तेल का प्रयोग करें। दोनों बेंडिंग डिसऑर्डर्स के लिए हैं, दोनों स्पीस ऑफ लिगामेंट्स में हैं, और
प्रकृति में थोड़ा अंतर आता है, उसके हिसाब से अपन इसको कर सकते हैं। हील एक बड़ा, बहुत महिलाएं आती हैं आप लोगों के पास में कि साहब सुबह उठते हैं तो पैर जमीन पे नहीं रखा जाता। अब ये देखिएगा, आप सवेरे उठते हैं जब पैर जमीन पे नहीं रखा जाता, ये महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या है। और इसमें अधिक केसेस के अंदर कदर कदर में क्या होता है, महिलाएं नंगे पेट चलती हैं और कोई भी नुकीली चीज या कोई छोटा पत्थर का कंकर या मतलब कुछ भी ऐसा हार्ड सब्सटेंस, उसके ऊपर उसने प्रेशर के साथ में अपनी एड़ी को रखा। अब वो तो रख के भूल गई उस बात को, तो लेकिन वहां क्या होता है कि दो चार फाइबर्स जो है उससे डैमेज हुए एड़ी के। तो वो दो चार फाइबर्स जो है वो बढ़ करके और एक कदर कदर का मतलब बेर की गुठली, वैसा एक मतलब हार्ड सब्सटेंस जैसा अंतर बन जाता है। और उसकी वजह से जो दर्द होता है, अब उसको कुछ कंटक भी कहते हैं, कुछ कदर कहते हैं, अलग अलग नाम है। उसके अंदर अपना ये काशी सादी तेल, काशी सादी तेल का बंधन करना चाहिए, व्रण बंधन जैसे करते हैं उस तरीके से काशी सादी तेल का बंधन करेंगे तो बहुत पुराना है तो 2-3 महीने लगेंगे, और नया है, ज्यादा पुराना नहीं है तो 15 दिन 20 दिन के अंदर उससे आराम मिल जाता है। इसका हम क्या करते हैं, काशी सादी तेल को एक अपने साड़ी फोल का टुकड़ा लेके उसको चौकोर फोल्ड करते हैं, उसको कास्ता तेल में डिबो के निचो के और उसको पूरी एड़ी पे रखते हैं। उसके ऊपर फिर पॉलीथीन का टुकड़ा या कोई पत्ता रख के और साड़ी फोल से ही उसको बांध दिया। रात को बांधा और सवेरे उसको खोल दिया, दिन भर खुला रखा, रात को फिर बांध दिया, ताकि उसके काम में भी रुकावट नहीं आई और काम उसका दवा का इलाज भी हो गया। यह हील एक जिसको अपन कहते हैं, उसके अंदर मेरा अपना अनुभव है और इससे सबको मिलता है, फायदा होता है इससे। काशी सादी तेल ट्रीटमेंट के हिसाब से अब थोड़ा सा एक आध दो चीजें और रह रही हैं जो मैं चाहूंगा। जैसे ट्रॉमेटिक लेजियंस में, ट्रॉमेटिक लेजियंस के अंदर हड्डी जुड़ नहीं रही, गैप आ रहा है बीच के अंदर, और जो केलस फॉर्मेशन बनना चाहिए वो नहीं बन पाया। तो उस स्थिति के अंदर अपने हड जोड़ के नाम से ही है, अस्थि मेखला की भी उसी नाम से आता है हड जोड़, और उसका प्रयोग करना चाहिए। अब उसमें क्या होता है, हड जोड़ जो है यह थोड़ा उष्ण होती है, तीक्ष्ण भी है और उष्ण भी है। तो इसका प्रयोग जो है, इसका यानी रस निकाल के और उस रस से पुए जिसको अपन कहते हैं ना, मालपुए, या उसका हलवा बनाया, हलवे में डाल दिया, यानी अच्छा, यानी घी और गुड़ के साथ में इसका प्रयोग करना चाहिए। और मात्रा इसकी कम से कम एक बार में 5 ग्राम, 5 ग्राम का रस निकाल के और उसका स्वरस से पुआ बना लें या हलवा बना लें, उस हलवे का प्रयोग अपन को करना है। कोरा अगर अपन ने इसको दिया तो उससे उसको तकलीफ आएगी, पित्त बहुत बढ़ जाएगा। और यह सबसे अच्छी दवा है। और कैल्शियम कोई भी साथ में दे दें अपन, बहुत सारे प्रयोग हैं अपने प्रवाल पंचामृत से, कोई भी मतलब प्रवाल का या शंख या ऐसा जैसा प्रकृति में उसको ठीक लगता है। और कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो कपर्दी का सबसे अच्छा, कपर्दी का ना उष्ण है, न शीत है, न तीक्ष्ण है और न लघु है। ये कपर्दिका का खास करके अपन को इसमें, और ज्यादा महंगा भी नहीं है, इजीली अवेलेबल है, इसका प्रयोग करना चाहिए। ट्रोमेटिक लेजन, अब ट्रोमेटिक लेजन के अंदर क्या होता है कि जहाँ जॉइंट्स के अंदर कोई दिक्कत आई है, पेन मतलब जॉइंट्स के अंदर ट्रॉमा हुआ है, तो उसके अंदर लिगामेंट्स जो टूट जाते हैं, जिसको अपन कोई ACL, MCL, PCL, अलग अलग नाम दे रखे हैं उनके, यानी इन लिगामेंट के टूटने के बाद, यानी इनमें टीयर होने के बाद में बहुत परेशानी आती है, जुड़ते नहीं है वो, है ना। और जुड़ते नहीं है तो चल भी नहीं पा सकते, और दर्द भी बढ़ेगा और ठीक भी नहीं हो सकते। तो इसके अंदर जो मैंने काला जीरी, आमा हल्दी, कुचला और प्याज,
इनका जो पेस्ट बना करके उसमें तेल के साथ में उसको भंजन करके, और पहले तेल लगाया और फिर उसको लेप करके और व्रण मतलब बंधन कर दिया। इससे टियर ऑफ लिगामेंट्स भी ठीक होते हैं। और वो तो स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस का तो मैंने बताया था, वो तो होता ही होता है। यहाँ ये भी अब इसका फायदा वहाँ और यहाँ दोनों जगह किस तरह से हुआ, इसका मेरा अनुभव ऐसा आता है कि ये शोथक्र भी है और रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है। रक्त का प्रवाह बढ़ने से डेब्रीज वगैरह सब हट जाती हैं, और रिपेयरिंग उसका जो है वो फास्ट हो जाता है, हीलिंग फास्ट हो जाता है। ये सारा उससे जो अवरोध हैं रक्त संचरण के वो दूर होते हैं, तो वहाँ की फिर सारी चीज ठीक हो जाती है। एक और है जो, यानी इस्चेमिक डिजीज के अंदर उसका अपन ने जिक्र किया था कि जैसे फीमर हेड है, फीमर हेड के अंदर अंदर कोई कार्टिलेजस ग्रोथ हुई, या कोई अपना इसमें बोन मेरो के अंदर कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हुआ कि उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो फीमर हेड की जो आउटर शीट है वहां पर नेक्रोसिस डेवलप हो जाता है, जिसको अपन एवीएन कहते हैं। आपने सब नाम सुना है, एवीएन, एंट्रोवेंट्रिकुलर नेक्रोसिस। इसके अंदर हमको इस्कीमिया को वहां से हटाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मैंने अपना अनुभव में आया है, अपना जो ये वीट ग्रास जो होता है, वीट ग्रास को अलग अलग नाम से कहते हैं, कहीं कुछ नाम होगा, यानी जो 6 इंच से 12 इंच के बीच का जो गेहूं का पत्ता है उसको वीट ग्रास कहते हैं। उसका रस पिलाने के लिए, या उसका पाउडर या उसका एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल, तीनों मिलते हैं। वीट ग्रास जो है ये इस्कीमिया को दूर करता है, यानी जो सर्कुलेशन जो आपका रुका हुआ है किसी भी कारण से बोन के अंदर का, उसको ये दूर करता है। तो उसको दूर करने की वजह से, और उसका जब सर्कुलेशन चालू हो जाएगा तो उसका नेक्रोसिस फिर ठीक होने की रहेगी। एक इसके अंदर पंचतिक्त क्षीर बस्ती भी देते हैं। पंचतिक्त क्षीर बस्ती का भी प्रयोग इसमें है, नेक्रोसिस के अंदर, एवीएन जिसको अपन कहते हैं। फीमर में होता है नेक्रोसिस, खासकर ज्यादातर फीमर के ही मिले हैं पेशेंट, और भी जगह हो सकता होगा, लेकिन पेशेंट ज्यादातर फीमर के ही मिले हैं। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि अब ज्यादा टाइम, क्योंकि 15 मिनट हमारे पास है, अगर फीडबैक मिलेगा तो ज्यादा अच्छा। फीडबैक से मतलब आपकी जो जिज्ञासा है वो आप पूछिएगा, क्योंकि ये तो मेरा जितना अपन समय के हिसाब से जो बता सकते थे वो मैंने लिया। ज्योति जी आप देखिएगा अगर किसी की कोई क्वेरी है। हाँ जी सर। हाँ। सर बहुत बहुत थैंक यू आज के सेशन के लिए। और इनफैक्ट अभी क्योंकि थोड़ा मैंने हाँ इसको शॉर्ट में लिया है हाँ ना। जी सर। हाँ जी नेहा सर। की क्वेरीज हो सकती हैं और भी किसी की भी हो सकती हैं, हाँ जी सर। क्वेरीज पूछिएगा। बहुत सारी हैं सर। अ, सर बोन मैरो सप्रेशन में क्या कर सकते हैं सर? हाँ, ये जो मैंने लाक्षा का जो आपको प्रयोग बताया है ना, लाक्षादि गोकुल का, हाँ जी सर। उसके अंदर बोन मेरो की जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें लाक्षादि गोकुल का प्रयोग करना चाहिए, है ना। आज अब देखो, एक एक जो मतलब अपने इससे संबंधित नहीं है वो बीमारी, लेकिन है तो बोन मेरो की, जो अपने आरबीसीज डेवलप नहीं होते। बोन थैलेसीमिया। सर आवाज चली गई आपकी। सर म्यूट कर दिया आपने। हेलो। सर आपने अपने आप को म्यूट कर दिया। में का प्रयोग,
सर आपका म्यूट हो गया था, प्लीज रिपीट कर दीजिए सर सभी। हाँ हाँ, आपका म्यूट पार्डन। हो गया था सर। नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया। आपका जो आंसर था ना बोन मैरो वाला, वो आप रिपीट कर हाँ दीजिए सर। हाँ, बोन मेरो के अंदर मैंने लाक्षादी गुगुल का प्रयोग किया है, व्हीट ग्रास का प्रयोग किया है। व्हीट ग्रास ओके भी सर। इसमें इफेक्टिव है। व्हीट ग्रास में हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट मंगवा के उसके कैप्सूल्स देते हैं, तो उसमें डोज पूरा चले जाता है। यानी 30 ग्राम पाउडर पर डे जाना चाहिए व्हीट ग्रास के अंदर। 30 ग्राम पाउडर ओके जाएगा सर। तो काम चलेगा, है ना। ओके सर। सर हाँ एक और क्वेश्चन है। हाँ, ये कोई विज्ञापन आ गया है बीच के अंदर। हाँ, अब बताएं आप। हाँ सर अभी बताती हूँ। हम्म, न्यूरोपैथी में क्या दे सकते हैं सर? इसमें न्यूरोपैथी में। न्यूरोपैथी के अंदर जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वहां पर जितने भी न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम्स हैं वो कंप्रेशन की वजह से हैं। बल्गिंग ऑफ बोन, मतलब उसका जो वर्टिब्रा का जो एंड, मतलब जो दोनों तरफ के जो ब्रांच निकलती हैं वर्टिब्रा की, जहाँ से नर्व्स बाहर आती हैं, वो जगह फूल जाती है, बल्किंग उसको कहते हैं, या डिजेनरेशन हो जाता है। तो उसका प्रेशर उस नर्व के ऊपर आता है। तो जब तक वो प्रेशर नहीं हटाएंगे तब तक अपन नर्व का दर्द नहीं मिटा सकते, साइटिका हो चाहे अपना ये सर्वाइकल हो। इसके लिए हमें, जो मैंने आपको बताया था ना, शिलाजत्वादी और वो लोकल, लोकल से तुरंत लाभ मिलेगा। जो ये 4 चीज बताइए, इसका लेप करा करके आप देखिएगा, 2 दिन 3 दिन में आराम मिलेगा उसको, है ना। ठीक और है सर। उसके परमानेंट रिलीफ के लिए शिलाजत्वादी होती है। जो बल्किंग ऑफ बोन है या स्पॉन्डिलाइटिक आपका डिपोजिशन है, उसके अंदर लोकल ट्रीटमेंट में उन चारों चीजों का लेप और शिलाजत्वादी वटी का प्रयोग, दोनों सर काम होंगे। चारों इंग्रेडिएंट्स सर, काला जीरी, आमा हल्दी, कुचला और प्याज का पेस्ट, यही है ना? प्याज, ओनियन, तो सर कुचला, यानी इनकी मात्रा क्या रहेगी कुचला की? इक्वल शोधित। इक्वल, चारों चीज इक्वल। अब इसमें प्याज थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है क्योंकि प्याज के रस में ही इसको पीसना है। और कुचला शोधित ही चाहिएगा ना सर? कुचला पाउडर ही लेना चाहिए, क्योंकि कुचला इमीडिएटली अगर हम उसका पाउडर बनाने चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो यस। कुचले का पाउडर हमारे पास में रहना चाहिए फार्मेसी में, अपनी मतलब डिस्पेंसरी में, या मार्केट में भी मिल जाता है कुचले का पाउडर, यस है सर। ना। ये कुचले के नाम से नहीं मिलेगा, ये विष मुष्टि के नाम से मिलेगा। विष मुष्टि, यस विष सर। मुष्टि का पाउडर मिल जाता है। और इनको अपन चारों को मिक्स करके प्याज के रस में, मतलब प्याज के रस में उन तीनों को पीस करके और उसका लेप करें, गरम करके लेप करें, या तेल उसके साथ तेल सिद्ध करके तेल को लगा के और फिर उसके बाद उसका बंधन करते हैं, तुरंत आराम मिलेगा, तुरंत। मतलब मैंने 20-20 साल पुराने जो ट्रॉमेटिक लेजेंड्स हैं, 20-20 साल पुराने, वो इस लेप से ठीक हुए। हाँ, सर ये ये तो अब ये बहुत गुरुओं अच्छी का बात है आशीर्वाद सर, है, गुरुओं का प्रेरणादायक आशीर्वाद। है सर। हाँ, यस ये सर गुरुओं यस। का आशीर्वाद है। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ जैसे आजकल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत ज्यादा हाँ बढ़ रही है, हाँ हाँ। तो उसके लिए साइनोविल, जैसे जो फ्लूइड कम हो जाता है, कार्टिलेज कम हो जाता है, उसके लिए हम आयुर्वेद से क्या कर सकते हैं सर? मैंने बताया ना आपको, ये है ऑस्टियोफाइटिक डिजेनरेशन ऑफ द जॉइंट। तो इसमें जो शिलाजत्वादी वटी, 3 ग्राम पर डे, दिन में 3 बार, 1-1 ग्राम दिन में 3 बार। और ये जो लेप है, ये चारों ओके चीजों का लेप, ये आप पूरे विश्वास के साथ दीजिएगा। 6 महीने, 3 महीने में वो पेशेंट कह देगा कि अब मुझे दर्द में आराम है, और 6 महीने बाद वो कह देगा कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा ठीक है। और साल भर बाद में उसको दवा बंद कर सकते हैं, मतलब उसको फिर इम्प्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कम से कम 100-50-100 लोगों के तो इम्प्लांट रोके हैं, यही सर दवा लेप, है। लेप कितनी देर तक लगा के रखना है सर? लेप को बांधना है, 4-5 घंटे बांधना, मतलब पहले उसका तेल जो है उसको
अभ्यंग कर लें, और उसके बाद में जो वो पल्प जो है, उस पल्प को वहां पे लगा के उसके ऊपर कोई पत्ता वगैरह रख के और कपड़े से बांध दें। तो वो क्या है, 4-5 घंटे तक उसको रखते हैं। ओके सर। हाँ ना, उसमें मतलब ये जो नी इम्प्लांट वाली जो प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम इन 2 दवाओं से है, एक लोकल और एक ओरल। ये नहीं, मैं आपको अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, ये कम से कम 100 मरीजों के इम्प्लांट तो रोक दिए हैं। ओके है ना? सर। सर और देखिएगा, यस सर, एक हमारे डेलीगेट हैं जिन्होंने क्वेश्चन लेना है, हयाज। सर गुड हाँ जी इवनिंग सर। अब नी रिप्लेसमेंट करते हैं ना सर, फिर भी उन लोगों को पेन आने से ये मेडिकेशन दे सकते हैं? आप ठीक से बताइए, ठीक से बोलिएगा। जिन मैम, लोगों थोड़ा का सा जॉइंट रिप्लेसमेंट तेज हो आवाज में जाता बात, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ? जी, आप जिन लोगों सुन का लीजिएगा, फिर मेरे को बताओ, क्यों मुझे हियरिंग प्रॉब्लम है, मैं डायरेक्ट बात को सुन पाऊंगा, इनडायरेक्ट बात को नहीं सुन पाऊंगा। ओके ओके सर। हाँ, तो आप इन्हें बता दीजिएगा, फिर ये मैं आपको जवाब दे दूंगा। जी, जिन लोगों का जॉइंट रिप्लेसमेंट हो चुका है, हाँ अगेन उन लोगों को फिर पेन आ रहा है नी जॉइंट के पास, तो यही मेडिकेशन काम करेगा? हाँ, ये जो 4 चीज का जो मैंने कंपाउंड बताया है, जी इसको अपन बना के भी रख सकते हैं, ओके। क्योंकि जिस पेस्ट पे ऊपर ऑयल है वो हम्म। खराब नहीं होगा। उसमें जी जी। उसमें कोई मतलब ना फंगस आएगा और ना फर्मेंटेशन होगा, दोनों चीज नहीं ओके। होगी उसके अंदर। हम्म। ऑयल चाहिए, ऑयल से भरा हुआ रहना चाहिए, है ना? जी और जो इसका पेस्ट बनाएंगे ना अपन चारों चीजों का, उस पेस्ट को ऑयल मतलब उससे ऑयल सिद्ध कर ले। अब ऑयल 4 गुना नहीं लेना, ऑयल उतना ही लेना है जितने में वो पेस्ट सिद्ध हो जाए, ऑयल अधिक जी। नहीं लेना उसमें, जिसको अपन सामान्य भाषा में अलग अलग जगह अलग अलग नाम है उसका, हम्म। है ना? मेरी दादी इन माँ के चारों का नुस्खों में पेस्ट आता। को पंचगुण तेल से मिलाना है सर? हाँ सर। 4 चीजों का पेस्ट है ना, आमी हल्दी, काली जीरा, प्याज और कुचला। हाँ, और कौन सा आमा तेल का हल्दी, प्रयोग करें? आमी हल्दी, आमी हल्दी, हम्म। आमा हल्दी, यस सर। है तेल ना? पंचगुणा तेल। ये ओके 4 ओके। चीज हुई ना। हम्म। पंचकुंड तेल जो है वो शोथग्न है, दर्द निवारक भी है और शोथग्न भी है, शोथ उससे कम होता हम्म। है ना? और इसमें जो सेनाइल अर्थराइटिस के अंदर जिसमें मैंने नारायण तेल का पान और नारायण तेल का अभ्यंग बताया है, उसमें अगर स्थूल व्यक्ति है, मेदस्वी व्यक्ति है, तो उसको अपना ये विषगर्भ तेल लेना चाहिए, पान के लिए नहीं, लोकल प्रयोग के लिए। विषगर्भ तेल पान नहीं करवाना, पान तो नारायण तेल का ही होगा, स्नेह पान जो है वो नारायण तेल का ही होगा। उसको ये अपन लोकल यूज के लिए, अभ्यंग के लिए विषगर्भ तेल ले, अगर स्थूल प्रकृति स्थूल कार्य है तो। नारियल तेल थोड़ा कम, मतलब तुरंत असर नहीं करता, और विषगर्भ तेल का असर तुरंत आता है। ओके सर, थैंक यू सर। और देखिए, प्रतिभा आ, मैम, प्रतिभा मैम। प्रणाम सर। साइटिका में जब पेन बहुत ज्यादा होता है पेशेंट को, तो इमीडिएटली हाँ, रिलीफ क्या दे सकते हैं? पट पंड पितृपंड स्वेद, पिंड वो क्या बोलते हो आप उसको, पत्र पिंड स्वेद, ओके सर। है ना? हाँ, पत्र पिंड स्वेद अपने उसको शास्त्र में मिल जाएगा। और इसको जो अपना एलएस जॉइंट होता है, लेग लंबो सेक्रल जॉइंट, वहां आप लगाएं। और अगर मान लो अपना पत्र पिंड स्वेद नहीं व्यवस्था हो पाती है, तो ये जो मैंने चारों चीज जो बताई है, इसका आप बंधन करवा दें उसको। रात को सोते समय उसको वहां बांध करके सो जाएगी, सवेरे तो बिल्कुल ताजा उठेगी, उसको दर्द ही नहीं उठेगा, दर्द ही नहीं रहेगा सवेरे उसको। ओके और सर, और उसका इंटरनल ओरल मेडिसिन क्या दे सकते ओरल हैं? ओरल के अंदर शिला जतवादी बटी, बड़ा विचित्र बात है ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, आज तक किसी ने उपयोग नहीं किया इसका, शिला जतवादी बटी का। यस सर। गृहदृष्टि के लिए कह रहा हूँ मैं, साइटिका के लिए, साइटिका और अपना विश्वाची, जिसको अपन सर्वाइकल पेन कहते हैं, दोनों में।
और घुटनों के लिए भी बताया मैंने आपको इसी का, क्योंकि शिलाजीत से मैं पहुंचा हूँ उस स्थान पे। शिलाजीत का जो गुण है वो लघु है, स्निग्ध है और तीक्ष्ण है। अब स्निग्धता के साथ तीक्ष्णता है, जहां भी अवरोध है, जहां भी माना एक्स्ट्रा ग्रोथ आई है, उसको ये हटाएगा। और फिर जब आप उसका शास्त्रीय गुणधर्म पढ़ेंगे तो वहां अपनी बात कंफर्म हो जाएगी। और थैंक यू सर। इसका खास करके शिलाजीत के तो बहुत सारे योग हैं, लेकिन शिलाजतवादी वटी ही क्यों लिया? क्योंकि इसके साथ निम्ब का है, निम्ब की भावना है, इसके अंदर 7 भावनाएं निम्ब की हैं। निम्ब की वजह से शिलाजीत के गुण जो हैं उसमें लेखन गुण बढ़ गया उसका, लेखन गुण बढ़ गया उसका। ये हाँ सर। लेखन हो गया मतलब आपका। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर प्रतिभा एंड डॉक्टर हयाज, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर सदानंद, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। Sir, kindly explain that बंधन once more, sir. आपको ऑनियन का यानी प्याज का रस में आम्रगंधी, हरिद्रा चूर्ण प्लस काला जीरा का चूर्ण और कुचला यानी कुचला विष मुष्टि, विष तुंदुक, हेलो विष तुंदुक सर, नक्ष चला का भूमिका भी पाउडर। इसको कहते हैं, तो ये उसका पाउडर। कौन सा रेशियो में लेना है और कैसे बंधन करना है सर, थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसमें क्या करना है, प्याज के साथ में इसको सॉरी पीसना मैं है। आपको रिपीटेडली डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये अनुभूत का है आपका जो कॉम्बिनेशन है सर। हाँ ये हाँ। तो कृपया थोड़ा और एक बार दोबारा बोल दीजिएगा, वो मात्रा कितना लेना है, कितना घंटा उसको रखना है, और उसमें कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं क्या देखिए मेरी बात सर, सुनिए, रैशेस वगैरह। तीनों जो चीज है प्याज के अलावा, ये तीनों समान मात्रा में लेनी है और प्याज के रस के साथ उसको पीसना है, यानी प्याज के साथ उसको पीसना है। आप तीनों का पाउडर पहले बना लीजिएगा, फिर प्याज के टुकड़ों के साथ मिक्सी में चला दीजिएगा। कम रहता है फिर प्याज डाल दीजिएगा, मिक्सी में ही बनेगा ना पेस्ट तो इसका। यस सर। तो वो जितनी हरिद्रा, प्याज की जरूरत है हरिद्रा उतने में आम्रा पेस्ट ही बना ले, लेना है सर। यानी हरिद्रा इसका पेस्ट हरिद्रा हमारा पेस्ट कॉमन बनना हरिद्रा चाहिए। लेते हैं। हाँ, हरिद्रा जो है अपना जो किचन में यूज करते हैं वही यूज आम्र करना है। हरिद्रा, आम्र हरिद्रा, ओके सर। आमा हल्दी, आम्र हरिद्रा, हरिद्रा नहीं लेना, हरिद्रा अलग उपयोग है। हरिद्रा ना सर। आम्र, आंबा हल्दी, देयर इज अ वन आमा ड्रग इज हल्दी नोन एज अलग आंबा है। हल्दी सर। ओके सर। सर संस्कृत में इसको अवेस्कुलर आम्र हरिद्रा कहा है और नॉर्मली इसको आमा हल्दी कहते हैं। सर अवेस्कुलर हम्म नेक्रोसिस का एक पेशेंट है, हमने अभी ट्रीटमेंट हम्म। कर रहे हैं उसका, और उसको बस्ती दिया था हमने, ही इज नाउ ही कैन वॉक। तो आपने उसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं सर, अवेस्कुलर नेक्रोसिस जैसे पंचतिक्त क्षीर आपने। बस्ती, पंचतिक्त जो 5 तिक्त हैं अपने, हाँ हाँ सर। कंटकारी, परवल, गिलोय, वासा और नीम, ये जो 5 तिक्त हैं, इन 5 तिक्त की क्षीर बस्ती देनी है। खीर, इनसे खीर सिद्ध करके, और जो बस्ती जिस तरह से देते हैं, तेल और अपना गोमूत्र मिला करके, जो बस्ती का प्रकरण है वहां अपन को जाना है। उसका उसमें आपको शास्त्र में मिलेगा पंच क्षीर बस्ती, सर पंचतिक्त क्षीर अनुवासन बस्ती देना या है, पंच क्षीर बस्ती, निरुआ है ना? तो ऐसा हो गया, अनुवासन बस्ती किससे देना है? है जी। सर ही, अनुवासन सदानंद सर, आई विल आस्क द क्वेश्चन, वेट सर। कीर्ति सर, हाँ सर। वो पूछ रहे हैं कि अनुवासन बस्ती हो, निरूह बस्ती तो आपने बता दिया, अनुवासन बस्ती कौन से तेल से देनी है? नहीं, बस यही देना है। ठीक है सर। हाँ, यही देना है, इसमें रिपीट नहीं, उसको क्रम नहीं बनाना उसका, निरू और आस्थापन का क्रम नहीं बनाना, ठीक है सर। है ना? और अगर मान लीजिएगा हाँ बस्ती नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर जो वीट ग्रास एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल लीजिएगा।
और उसका लोकल यूज जो अपना ये ऑइंटमेंट है मैंने जो बनाया है, ये अपना मतलब जो लेप है, यानी फीमर हेड के ऊपर इस लेप को लगाएं, ठीक है सर। है ना। हाँ सर एक और क्वेश्चन है। हाँ यूरिक एसिड बहुत ज्यादा रेज्ड है हाँ और टॉफाई फॉर्मेशन हो चुका है और हाँ मैल फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स भी स्टार्ट हो गया, तो हाँ ऐसे में हाँ। क्या कर सकते हैं? पेशेंट का उसमें एज बला बला 48। गुरु इत्यादि तेल की बस्ती दिलवाइएगा उसको। सर अगर पेशेंट बस्ती ना ले पाए तो? पान करवाइएगा बड़ा बड़ा गुरु इत्यादि तेल का। और मेडिसिन में सर? मेडिसिन में अमृता कुकुलू। ओके सर। और और उसके अंदर एक मैंने बताया था ना माजून सुरंजान। हाँ सर। माजून सुरंजान बहुत अच्छा पेन रिलीवर है गाउट के अंदर। चार ओके पांच दिन में फर्क पड़ता है। ओके सर। ये सारे मतलब बहुत कम यानी औषधि के साथ में ट्रीटमेंट है, परफेक्ट ट्रीटमेंट। जो जो एक एक दो दो फार्मूले, एक एक दो दो जो योग मैंने लिए हैं, यह हाँ जी कम सर। से कम औषधि के साथ में पूरा लाभ मिलने वाला है। ओके सर। सर लेकिन एक इनकी डोजेस पूरी चाहिए। जैसे अमृता गोकुलू दिया तो अमृता गोकुलू को 2 ग्राम पर डे चाहिएगा, 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम को। और उसके साथ में बला गुरुचादी तेल का पान करवाना है। ये तो ओके संभव सर। है यस ना। सर। पेशेंट ठीक हो जाएगा ये पक्का, कितना भी हो, 20 यूरिक एसिड है तो भी हो जाएगा। ओके सर। हाँ सर एक और क्वेश्चन है कि हाँ जैसे स्वाइन फ्लू के बाद, कोरोना के बाद में या अस्थिगत हाँ। जो ज्वर के बाद में जो पेन रहता है बोन्स में, उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? नहीं, लक्षण क्या है आपका, निदान क्या कह रहा है? आप निदान, या तो निदान बताइएगा या संप्राप्ति बताइए। सर सर्दी के मौसम में दर्द बढ़ जाता है। तो उसमें तो नारायण तेल का पान कराइएगा, ठीक है सर। है ना। ठीक है सर। या अपना सिंपली योगराज कुकुल दे सकते हैं। ओके सर। हाँ, दोनों दोनों साथ कर सकते हैं, योगराज कुकुल और नारायण तेल को साथ में दे दिया, वो कर सकते हैं। अब उसके अंदर अगर मान लीजिएगा कि वार्धक्य मतलब जिसमें क्या होता है, ये तो निर्णय हमें दोष के हिसाब से लेना पड़ेगा। जैसे प्रसारणी तेल से, प्रसारणी तेल शूलग्न है और वातग्न है, उष्ण है। सर्दी में ज्यादा हो रहा है तो प्रसारणी तेल ले सकते हैं। प्रसारणी तेल का अभ्यंग भी करा सकते हैं, अब प्रसारणी तेल का पान भी करा सकते हैं। तो ये शूलग्न भी है और शोथग्न भी है ओके सर। ना। मेरा अब सभी ये डेली। जरूर है कि ये जो तेल जो मैंने बताए दो तीन, क्षीर वाला तेल, नारायण तेल, प्रसारणी तेल, ये हमें अच्छी कंपनी के लेना चाहिए। सस्ते वाले भी जो आते हैं ना वो काम नहीं करते। जैसे अगर प्रसारणी तेल है, क्षीर वाला तेल है, तो कोटक्कल मतलब अपने आयुर्वेद वैद्यशाला का लें या वैद्य रत्नम का लें, तो उनके तेल अच्छे बने हुए आते हैं। और भी होंगे फार्मेसी, मुझे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है वहाँ की, लेकिन जो मैं लेता हूँ तो मैं कोटक्कल मतलब आर्य वैद्यशाला का ही लेता हूँ, तो उसका परिणाम ओके। मिलता है। हाँ ओके सर। सर एक 76 ईयर्स की फीमेल है, आमवात की पेशेंट है और प्रमेह भी है, तो आम उनको बात क्या को, देना चाहिए? आमवात आम भी बात, है, प्रमेह भी है। आम बात में कार्डियक प्रॉब्लम आया है। नहीं सर, प्रमेह साथ में है। प्रमेह, हाँ जी। प्रमेह में तो अपन प्रमेह के हिसाब से आम बात को प्रमेह से क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं सर, उनके पेशेंट का ये डिटेल्स है सर, मुकेश देखो कुमार। पहले आम बात ठीक करें, फिर प्रमेय अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ पहले आम बात ठीक करें, प्रमेय अपने आप ठीक हो जाएगा। आम बात के अंदर एक मैं बताना रह गया मेरा, हृदयार्णव रस का प्रयोग, जो ताम्र की मैं बात कर रहा था, जो मैंने बताया था ना कि ताम्र का प्रयोग करना चाहिए, उस समय मुझे ध्यान नहीं आया था। ताम्र का आमवात में प्रयोग करना है तो उसका सबसे अच्छा योग है हृदयार्णव रस। ठीक है सर। ये खास करके माइट्रल स्टेनोसिस में देते हैं। लेकिन जहाँ जो माइट्रल स्टेनोसिस में दिया है तो उसका लाभ अपने को इसमें भी मिलेगा।
आमवातिक संधि शोथ में भी लाभ मिलेगा। शोथ से तो हुआ ना, यहाँ भी शोथ है वहां भी शोथ है, और ताम्र देना है तो फिर हृदय नवरस सबसे अच्छा। ठीक है सर। क्योंकि आमवात जिसको हुआ है उसको अगर हमने तुरंत ठीक नहीं किया तो 4-5 साल बाद में उसका कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होना ही है। अब जब कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो फिर सीधा स्टेनोसिस डेवलप होएगा, है ना। उस स्थिति में फिर हमें उसका स्टेनोसिस का इलाज करना है, तो पहले ही अपन हृदयार्णव रस दे देंगे तो वो स्टेनोसिस वाली स्थिति आएगी ही नहीं उसकी। ठीक है सर। हाँ, ये जो ताम्र का प्रयोग है मैंने गुरु से ही सीखा है। अभी आपने डॉक्टर गोपी कृष्ण जी से ही, मतलब वहाँ उन्होंने बताया था, मैं भी उस पर स्टडी कर रहा था कि ताम्र का किस तरह से अपन प्रयोग करें। और उनका जो उस दिन का लेक्चर था वो एक अलग उस पे है, उसका अपना अलग महत्व है, वो विषय अलग है ना। वो बहुत यस ब्रॉड सर। लेवल का मैटर है। उस उतने से समय में उस चीज को समझ लेना तो बहुत मतलब बिल्कुल असंभव सा है। हाँ जी सर। सर एक मुकेश कुमार जाटव, आई एम अनम्यूटिंग यू, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हेलो। थोड़ा तेज बोलिए सर। नहीं, आप हेलो। सुन लीजिएगा फिर आप पूछिएगा उनसे मेरे मैं पूछ, नमस्कार नमस्कार सर। हाँ जी बोलिए आ, सर, मैं बोल दूंगी आप। हाँ मैम, एक 42 ईयर की फीमेल पेशेंट है मैम, उसको क्रोस्टोक शीर्ष से है, मतलब नी जॉइंट्स में पानी का स्टोरेज हो जाता है मैम, तो बार बार उसको निकलवाना पड़ता है, तो उसके लिए मैम क्या विचार कर सकते हैं चिकित्सा के लिए? नी जॉइंट में पानी भर रहा है। जी मैम जी। सर एक फीमेल पेशेंट है, उनके नी जॉइंट में बारी बारी वाटर रिटेंशन हो रहा है और उनको वहां से टैपिंग करवानी पड़ रही है, जी तो मैम। क्या हाँ, कर सकते हैं सर? ये जो अपन ने क्रोस्टोक शीट से जो नाम लिया था ना, हाँ जी सर। डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड, यस सर। हाँ जी सर। डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड जो लिया था, हाँ तो जी ये सर। साइनोवाइटिस के बाद भी हो जाता है और बिना साइनोवाइटिस के भी हो सकता है। अब ये कैसे होता है ये पैथोलॉजी थोड़ा अलग विषय है, लेकिन इसके अंदर जो ये मैंने लेप बताया है ना आपको, चारों चीजों का, ये चारों चीजों का लेप करवाइएगा और पुनर्नवा मंडूर साथ में दीजिएगा, या ठीक है। पुनर्नवा गुल दे दीजिएगा या पुनर्नवा मंडूर दे दीजिएगा। पुनर्नवा का प्रयोग साथ में चाहिए। पुनर्नवा सब भी दे सकते हैं, पुनर्नवा अर्क भी दे सकते हैं। और ये जो लेप मैंने बताया, ये लेप, इसका लेप का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ये वहाँ के सर्कुलेशन को ठीक करता है, जितने भी अवरोध हैं उनको हटा देता है, जो अनरिपेयर्ड हैं, अनहील्ड हैं, वो टीयर है, ये सबको ठीक करता है। और इसका जो बेसिक रीजन है वो है इम्प्रूवमेंट इन सर्कुलेशन। ओके क्योंकि सर। ये जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके सर। हाँ, सर बैक एक, जो एलएससीएस के बाद में बैक एक रहता है फीमेल्स को आफ्टर स्पाइनल इंजेक्शन, तो उसमें क्या कर सकते हैं सर? वही शिला जत्वादी बटी और अपना लेप। और उसमें अब ये देख लीजिएगा कि अगर उसके टेंडेंस भी इन्वॉल्व हैं तो फिर क्षीरबला तेल या प्रसारणी तेल, यानी ठीक पूरे है सर। मैंने ऑस्टियोपैथोलॉजी को 10, 12, 15 योगों में कवर किया हुआ है। पूरी मतलब जितना आपने सुना है 15 योग से ज्यादा नहीं बताए होंगे मैं टोटल उसमें। यस सर। हाँ, ये 15 योगों से ही सारा मतलब ऑस्टियोपैथी का इलाज ठीक है सर। सर है एक ना। बार मैं लेप दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे हाँ, डेलीगेट्स को लेप का पता नहीं चल रहा नहीं, है। एक काम करिएगा देखिए आप, सर। उनको उनको हाँ। मेरा नंबर दे दीजिएगा, वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे, मैं व्हाट्सएप पे उनको जवाब दे दूंगा। हाँ जी सर, और एक बार मैं बोल देती हूँ, काला हाँ, जीरा, आमा हल्दी, कुचला हाँ, और प्याज, हाँ, इन सबको बराबर मात्रा में लेना है और पंचगुण तेल में पाक करना है। उसी नहीं, तेल को लगा तेल के सादा लेना है, पंचकुंड तेल नहीं सादा। लेना,
सादा तेल लेना है। ठीक है सर। सादा तेल में इस पेस्ट को मतलब लेही का पाक करना है, तेल से तो नहीं करना। ओके हाँ, अब जो उसमें तेल एक्स्ट्रा रहेगा उसको बंद करके फिर उसके बाद में उस पेस्ट को लगाना है। ओके सर। अब देखो यहाँ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने इसको फॉर्मुलेट किया हुआ है ऑइंटमेंट में और रोल ऑन दोनों रूप में। मेरी फार्मेसी यस सर। है ना, तो वहां और मैंने इसको सर का कांटेक्ट ऑइंटमेंट भी नंबर दे ऑइंटमेंट के दिया रूप है। में भी बना रखा है और रोल ऑन भी बना रखा है। तो मैं तो वो काम में ले लेता हूँ, मेरा काम तो बहुत आसान हो गया। अब जिसको चाहिए तो वो मेरे को मेरा मोबाइल नंबर आप दे दीजिएगा सबको, है ना, जो यस भी सर। इसको प्रॉब्लम है। मान लो उसको ये ऑइंटमेंट और रोल ऑन चाहिए तो हम उसको प्रोवाइड करवा देंगे, यस सर। है ना। Yes, sir. I इसी तरह request से Neha ma'am to post the sir's number and contact number in groups. लिगामेंट्स के अंदर दोनों चीज, दो में से अपन को देखना है। अगर पैथिक प्रकृति वाला है तो उसको क्षीर वाला तेल दें, Okay, और sir. अगर कफ प्रकृति का है तो उसको प्रसारणी तेल दें। पान भी कराना है और अभ्यंग भी कराना है। Okay, sir. और सबको मेरा नंबर दे दीजिएगा, नंबर है ही है सबके पास में, तो उसमें अपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया है उसमें नंबर है ना। हाँ सर, मैंने अभी तो उसमें ग्रुप में डाल रहे हैं सर नंबर। हाँ, ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो जिसको जरूरत होगी वो मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे। बस उनको ये कहें फोन नहीं करें, व्हाट्सएप करें, यस सर। या इंस्टाग्राम में कर दें या व्हाट्सएप में कर दें। डॉक्टर नेहा ने अभी अभी नंबर पोस्ट किया है सर का, हाँ 9414190383, 9414190383। सर को प्लीज आप व्हाट्सएप करें या टेक्स्ट मैसेज करें। हाँ, और और जो भी भी कोई इससे संबंधित क्वारी है तो वो पूछ सकते हैं, यस सर। है ना। यस सर। ठीक है। यस सर। सर आज के क्वेश्चन आंसर्स को हमें बताने के लिए बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। मैं सारे क्वेश्चन आंसर के सबके जवाब दूंगा, यस सर। है ना। हाँ, मेरी सबसे बड़ा जो मैंने अपना जो सिस्टम बनाया हुआ है वो ये है, कम से कम औषधि के अंदर पूरा सब्जेक्ट को कवर करना। यस सर। ये आपने पहले के 2 लेक्चर में भी देखा होगा। यस सर। यस सर। कम से कम योगों के द्वारा पूरा सब्जेक्ट कवर करना, यस है सर। ना। यस सर। ठीक है। आई थिंक आप सभी के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर फिर भी ये किसी आप का, उनको देखो, हाँ सबका जवाब अब नहीं बन पाएगा। वी आर 9/17, यस सर। है ना। तो सबका जवाब आप उनको सबको कह दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैं सबको जवाब दूंगा। यस सर। ठीक है ना। सर हाँ एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सर। हाँ, बोन मैरो अडीमा का क्या ट्रीटमेंट है अगर सिनाइल केस है तो? बोन मीरो में कोई भी प्रॉब्लम आई है, अपने को कपर्दिका और लाक्षादिक गुगुल का प्रयोग करना है। ओके सर। कपर्दिका और लाक्षादिक गुगुल, है ना। अब सर एज के हिसाब से थैलेसीमिया में उसकी भी, डोज है थैलेसीमिया जी। में भी? हाँ जी। ठीक है सर। हाँ, सर प्लांटर फेसाइटिस में? पार्डन, प्लांटर फेसाइटिस। ये तो नाम मैं सुना नहीं, इसको थोड़ा सा कोई बहुत डिटेल में चले गए, या हो सकता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो उनसे कहें मुझे व्हाट्सएप करके पूछें, यस सर। यस सर। है ना, मैं जवाब यस। दे दूंगा। यस। हाँ, यस। ठीक है ना। यस सर। बस अब इसको बंद हाँ करिए, मैं करती हूँ। है ना। हाँ जी हाँ, सर। प्रसारणी शूल सर, प्रसारणी शूल में? प्रसारणी तेल, प्रसारणी शूल। समझा नहीं। कोई बात नहीं सर, हम बाद में हाँ, पूछ आप लेंगे। उनको व्हाट्सएप पे यस। पूछ लेंगे, यस। है ना। यस। तो उसमें सुनने वाली प्रॉब्लम नहीं है ना, उसमें यस। पढ़ने वाली प्रॉब्लम। यस सर। तो पढ़ने में तो दिक्कत है नहीं, यस सर। यस सर। सुनने की तो प्रॉब्लम है ना। यस सर, एक्चुअली थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है, वी आर हाँ रनिंग आउट ऑफ द टाइम।
एंड नहीं, अब सर को भी देखो क्या जुड़े हुए। है, ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि इसमें हर प्रश्न का जवाब देंगे तो अभी 2 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि यस सर, जैसे ही किसी ने पूछा फिर दूसरा प्रश्न पूछेगा, जुड़े हुए सब हैं, है ना। यस तो इस यस वजह से तो इसका सबसे अच्छा है कि वो मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, यस। ठीक है ना। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। और मैं अभी सभी डेलीगेट्स का भी धन्यवाद देती हूँ। आपके जो भी क्वेरीज हैं आप आईएआर के साथ उसके व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में आप मैसेज डाल दीजिए, बिकॉज आप सभी लोग हमसे किसी न किसी ग्रुप में जुड़े हैं। आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स सर देंगे बिल्कुल और देंगे, बहुत ही जल्द 100%। सर फिर से हाँ, सेशन लेंगे। हाँ, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपको टॉपिक्स डॉक्टर कीर्ति जैन सर से चाहिए, बिकॉज सर अभी नियर अबाउट 80 इयर्स के होने वाले हैं और सर इतनी एज में भी इतने अच्छे से सबको समझाते हैं। सर को थोड़ा हेयरिंग प्रॉब्लम है, इसीलिए आप सभी सर को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपके जवाब सर से मिल जाएंगे। सो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इतना सब प्यारा सबको सेशन था सर। सबको बोलिएगा जय श्री राम। जय श्री राम सर, और हैप्पी न्यू ईयर। और एक हाँ, इस हैप्पी न्यू ईयर की शुरुआत आपके सेशन से हुई बहुत आईएआर के अच्छी बात द्वारा। है, बहुत अच्छी बात है। आप रखिएगा, वर्कशॉप रखिएगा, उसमें यस कोई सर, दिक्कत नहीं है ना, यस सर। कोई दिक्कत नहीं और है। हमारे ओके दो सर। अनाउंसमेंट्स हैं। हाँ सर, प्रणाम सर। सर आप 2 मिनट के लिए जुड़े रहिए सर। हमारे अनाउंसमेंट्स हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं आईएआर का ये फर्स्ट सेशन था 2024 का। आप जल्द हर ही हम महीने रस रखिएगा, यस सर, जल्द ही कोई रस प्रॉब्लम नहीं है। चिकित्सा हाँ, रस कोई चिकित्सा प्रॉब्लम नहीं है। होने जा रहा है बस ये है बेल्लारी में। कि यस जितना सर, समय मुझे मिलेगा यस उस सर, समय के हिसाब से जितना मैं बता सकता हूँ, यस सर, कवर पूरा करना है। कवर पूरा नहीं करेंगे यस तो जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारी ऑडियंस है, उनको भी ध्यान नहीं आएगा, हाँ जी है ना। सर, हाँ ठीक है जी ना। सर, हाँ ओके, सर। प्रणाम सर। नमस्कार। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज 2024 जुलाई के करीब रस चिकित्सा ऑर्गेनाइज होगा बेल्लारी में। और इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो भी लॉन्च होने जा रहा है। हमारी जो वेबसाइट है www.iiar.co.in, आप हमारे साथ फर्दर सेशंस के लिए भी जुड़े रहिए। और निश्चित ये सेशंस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और हमारी डेली प्रैक्टिस में बहुत अच्छे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हम सब प्रैक्टिशनर्स हैं। चाहे हम कुछ भी करते हो, हमें प्रैक्टिस जरूर करनी है, छोड़ना नहीं है। आयुर्वेद का बहुत अच्छा समय आ रहा है, इस इस उपलक्ष्य का आप सभी फायदा उठाएं। धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं और आने वाली बसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं, और अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उस सभी की आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।